Hello, Namaskar, Shastrikal, Adab, my dear students. I am Rajan Namdev, MSc Chemistry from DU. Today I am going to discuss one of the very interesting topic of inorganic chemistry, not so easy, the coordination chemistry. See, the coordination chemistry की शुरुआत ही जब से हुई थी from the year 1893, there was a scientist named Werner. He did some experiments on coordination chemistry, and on the basis of his experiment, he gave the concept of the coordination compound. So what experiment he has performed? Let's see in our video. Now, he took various solutions of cobaltic chloride. He prepared different solution of cobaltic chloride and did experiment on that. So first experiment, he took cobaltic chloride dot 6NH3. He made a solution of it in water and added excess of ammonia. He added excess of NH3. He added excess of silver nitrate in it. Now, our compounds contain chlorine, and we are adding silver nitrate. So chlorine on reaction with silver nitrate will form silver chloride. Silver chloride हमारे पास है. Now, he measured the weight of silver chloride. कोई वेट आया इसका. Then what he did, इस वेट के जो भी वेट आया उसने उसको ड्राई किया अपने कंपाउंड को, जो प्रेसिपिटेट्स है उसने उसको ड्राई किया और उसने सिल्वर क्लोराइड के मोलर मास से उसको डिवाइड कर दिया. मोलर मास सिल्वर क्लोराइड कितना होता है? सिल्वर का मास है 108, क्लोरीन का मास है 35.5. तो he divided this mass with 143.5 and then what he found that 3 moles of silver chloride are formed. इसने क्या ऑब्जर्व किया कि when he took 1 mole of cobaltic chloride, 3 moles of silver chloride are formed. It is very obvious because it contains 3 moles of chlorine, so 3 moles of silver chloride should form. But जब इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, the results were quite surprising. He took different second solution, CuCl3.5NH3. इसका नाम है परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड. He again added excess of silver nitrate. रिएक्शन हुआ, लेकिन इस टाइम पे इसे 2 moles of silver chloride मिले. He was confused. Why he found 2 moles of silver chloride? जबकि यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही क्लोराइड के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं. Then he continued his experiment. इसने CuCl3.4NH3 लिया. इसमें भी सेम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला और यहाँ पे लेकिन इसे 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिला. अगेन इस कंपाउंड में और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, देखिए कोई भी रिएक्शन जब साइंटिस्ट अपने लेवल पे परफॉर्म करते हैं तो एक ही बार में परफॉर्म नहीं करते. दे रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स. तो जब इसने इसके सॉल्यूशन को कई बार इसने बनाया तो इसने देखा कि कई बार तो इसको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है और कई बार इसको वायलेट कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है. तो अगेन ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड कि क्यों कुछ टाइम पे इसको ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है, कुछ टाइम पे इसको वायलेट सॉल्यूशन मिल रहा है. बट दोनों ही केस में हमारे पास एक ही मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड था. अगेन ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट and he took cobaltic chloride dot 3NH3. He added excess of silver nitrate and he was very surprised that no silver chloride formed. अब सोचा उसने, कई टाइम तक सोचा, कुछ दिनों तक सोचा. Ultimately, on the basis of his experiment, he found that कि कुछ क्लोरीन के molecules are ionizable, which can react with silver nitrate, and some chlorine molecules are non-ionizable. See, in all these cases, we have only 3 moles of chlorine in our compound, in our cobaltic chloride. But in all the cases, the silver chloride that is formed is different. तो इसने अपनी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक थ्योरी दी जिसका नाम था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. Now let's see what the theory is.
Werner's theory. Now, on the basis of his experiment, Werner found कि in every compound, in all the coordination compound, ये जो भी इसने कहा कि जो compound इस तरह का behavior show करते हैं, इसको इसने कहा these are coordination compounds. Now, अब coordination compound की property इसने क्या बताई कि in all the coordination compound, हर coordination compound में 2 types of valencies हैं. इसने कहा कि एक जो है प्राइमरी वैलेंसी होगी और दूसरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी होगी. फिर प्राइमरी वैलेंसी के लिए इसने क्या कहा कि प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल. तो जो भी एटम, ऑल द एटम दैट आर अटैच्ड थ्रू द प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड. मतलब जब इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो दीज आयंस कैन सेपरेट आउट. ये सारे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कहा. इनका इसमें नेचर क्या कहा कि सारी की सारी प्राइमरी वैलेंसी में जो भी एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे ये नेगेटिवली चार्ज होंगे. सी वी हैव सीन इन आवर लास्ट एग्जांपल कि हमारे पास जो है क्लोराइड था, क्लोरीन के ऊपर वी नो इट इज -1 चार्ज. तो यहाँ पे इसने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी में जो भी आयंस या एटम्स होंगे दे विल बी नेगेटिवली चार्ज. सेकेंड इसने कहा सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में. सेकेंडरी वैलेंसी में जो भी आयंस होंगे ये नॉन आयनाइजेबल होंगे. इसने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी के आयंस नॉन आयनाइजेबल हैं. इसका मतलब व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर दीज कंपाउंड डू नॉट सेपरेट विथ आवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया था केसेस में. अमोनिया सेपरेट नहीं हो रहा था, अमोनिया कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था. तो ये अमोनिया जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू अटैच्ड है इस कंपाउंड में, कोबाल्टिक क्लोराइड में. फिर इसने तीसरी बात कही कि जो भी सेकेंडरी वैलेंसी से आयंस या एटम्स अटैच्ड है यही उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट या फिर ज्योमेट्री डिफाइन करेगा. तो चौथा इसने कहा सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइंस ज्योमेट्री. ये कुछ बातें इसने कही. अब मेन स्ट्रक्चर इसने क्या दिया उस कंपाउंड का. व्हाट ही सेड कि ये जो कोबाल्ट है, लेट्स से ये जो डॉट वाली जो हमारी वैलेंसीज हैं इसको इसने कहा प्राइमरी वैलेंसी. ये है प्राइमरी वैलेंसी. इसके थ्रू तो हमारा क्लोरीन जोड़ा है और कुछ हमारी वैलेंसीज हैं ये लाइन वाली, ये है सेकेंडरी वैलेंसीज. सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू हमारा अमीन जुड़ा हुआ है. साथ ही साथ जो प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि देखिए जो सेकेंड जब उसने वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में इसने नेचर के बारे में क्या कहा था कि ये कंपाउंड या तो न्यूट्रल होंगे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे. तो यहाँ पे एक क्लोरीन एटम जो है सेकेंडरी वैलेंसी का काम भी साइमल्टेनियसली कर सकता है. तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों वैकेंसी शो करेगा. सेम टाइम में उसके चार्ज को सेटिस्फाई भी करेगा और एट द सेम टाइम लिगैंड की तरह भी रोल प्ले करेगा. नाउ वर्नर को अपने इस काम के लिए फॉर सो मच गुड वर्क, इतना यूजफुल वर्क था कि इन 1913 he got a Nobel Prize for his work in coordination chemistry. तो इसने एक नया ही कंसेप्ट ला दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्रांति ला दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम पे. तो नाउ लेट्स सी कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए, जब हमने देखा था वहाँ पे वर्नर का CuCl3.6NH3 इस टाइप का कंपाउंड था. अभी डॉट वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं. हाउएवर यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11, बट लेट्स टॉक अगेन. ये डॉट वाले कंपाउंड से इनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट सिंपली एज इट क्लियर विद द नेम कि डबल सॉल्ट आर दोज कंपाउंड्स जो डबल सॉल्ट, दो सॉल्ट सिंपली अटैच्ड हैं. These compounds when dissolve in water loses their identity. For example आप लोग पिकनिक जाते हैं स्टूडेंट्स, तो
आइडेंटिटी खो देते हैं, जैसे ही पिकनिक स्पॉट पे गए इधर उधर आप अलग हो जाते हैं। सिमिलरली डबल सॉल्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ही इसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, these elements या ions will separate out. Very famous example डिस्कस करते हैं हम मोहर सॉल्ट का। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, loses identity when dissolved in water. एग्जाम्पल है इसका मोहर सॉल्ट। अब मोहर सॉल्ट आप लैब में प्रिपरेशन भी करते हैं, आपने मोहर सॉल्ट के साथ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी परफॉर्म किया। क्या फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का? आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसको हम क्या करेंगे, वाटर में हमने डाला, वाटर में डिसॉल्व किया, हमने सॉल्ट किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या हो गया, हमारे पास आयरन का एटम अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया और अमोनियम अलग हो गया। वाटर का क्या हुआ, वाटर अलग हुआ, वाटर भी सेपरेट हुआ, बट एंटायर मीडियम इज वाटर, तो वाटर को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर रिएक्शन लिखते टाइम हम वाटर लिखेंगे, बट वाटर विल मिक्स विद द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल पोटेशियम। अब पोटेशियम देखो, पोटेश में पोटैश है तो पोटेशियम होगा K2SO4, दूसरा एल्यूमिनियम है, एलम है तो एलम से एल्यूमिनियम होगा तो Al2SO4 होल थ्राइस डॉट वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 24H2। अब इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, इट विल गिव अस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम and 3 + 1 4 moles of sulfate. Simple. Water molecule जो है will separate out. It is double salt. तो simple double salt की definition में we can say that double salt are those compounds that loses their identity or the atoms or ions separate out when these are dissolved in water. Very simple. Now similarly double salt की तरह हमारे पास एक दूसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं coordination compounds. So let's discuss second the main idea of our chapter, which is the coordination compounds. Coordination compounds क्या है? एकदम उल्टा, जैसे आपने डबल सॉल्ट पढ़ा तो डबल सॉल्ट का completely opposite, those compounds that do not loses their identity when dissolved in water. Example में हमने कोबाल्टिक क्लोराइड का एग्जांपल लिया था। लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लेते हैं, K4FeCl6 ये है। अब इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम के 4 एटम्स अलग, आयन्स अलग, या FeCl6 4 माइनस ये अलग, यहाँ पे स्टिल हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटैक्ट रहा। तो इस टाइप के कंपाउंड को हमने कह दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर एग्जिस्ट अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा दिखता है, इसके हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, इनका क्या नोमेनक्लेचर है, लेट्स डिस्कस दैट। लेट्स टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, यही पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेते हैं, K4FeCl6। देखिए अब इसके लिए जो K4 है, जो आयन अलग से अटैच्ड है, ये है हमारा स्टेयर्ड आयन, इसको कह दिया स्टेयर्ड आयन। और दूसरा ये आयन है, अगर ये आयन की फॉर्म में है तो इसको हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसमें अलग अलग चीजें हैं तो सिंपली कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये है जब ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तब। अदरवाइज जब ये कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तब हम इसको कहेंगे दिस K4 इज आवर काउंटर आयन। व्हाई इट इज काउंटर आयन, बिकॉज इट इज बैलेंसिंग चार्ज ऑन इट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये है काउंटर आयन
and this FeCN6 is a coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नाउ अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्या है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे पास देखिए ये एक चीज आ रही है आई, ये है सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन, इसको हम CMI भी कह देते हैं. तो सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो पार्ट है जिसको जो हमारे लिगेंड्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. सो इट इज वेरी स्पेशल केस. और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ओनली केमिस्ट्री जहाँ पे कोई जो है एटम आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है और वो आपकी मेटल को डोनेट कर रहा है. इन नॉर्मल केमिस्ट्री यू हैव नॉट सीन दैट कि कभी भी मेटल ही हमेशा डोनेट करता है. यहाँ पे मेटल इज द एक्सेप्टर. मेन पॉइंट इज दैट इज व्हाई दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज दैट मच स्पेशल. अब साइनाइड है, इस साइनाइड को हमने कह दिया इट इज लिगैंड. तो लिगैंड क्या है? लिगैंड्स आर दोज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल. सिंपली ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, इट इज सिंपली लिगैंड. अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मुश्किल नहीं है. कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन को कितने मॉलिक्यूल, एटम या लिगैंड्स ने सराउंड कर रखा है. सिंपली कितने लिगैंड ने, जितने लिगैंड आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे उतना ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है. यहाँ पे कितने लिगैंड हैं? 6 लिगैंड्स हैं. द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल. लेट्स टेक यहाँ पे है CO Cl3 NH3 CO Cl3 NH3 होल ट्राइस. ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. लेट्स से अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे 3 हमारे पास क्लोराइड हैं, 3 हमारे पास अमाइन हैं. तो 3 + 3 6. यहाँ पे भी 6 है. अगर आपके पास डिफरेंट लिगैंड्स हैं, यू जस्ट ऐड दीज लिगैंड्स, इट विल बी इक्वल टू योर कोऑर्डिनेशन नंबर. दैट्स इट. नाउ after this let's discuss the types of coordination compound. क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट इज होमोलैक्टिक. होमोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ पे जो लिगैंड्स हैं वो सारे के सारे सेम हो. अभी हमने एग्जांपल देखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, तो K4 FeCN6. यहाँ पे जो 6 लिगेंड प्रेजेंट है सारे के सारे साइनाइड हैं, सारे के सारे सेम हैं. तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज होमोलैक्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो इसके बारे में क्या लिखोगे? कंटेन्स दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन सेम लिगेंड और ओनली वन लिगेंड, वन टाइप ऑफ लिगेंड. नहीं तो आप लोग वन समझ लो, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोलैप्टिक. हेट्रोलैप्टिक लिगेंड क्या है? हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं? दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन सेम काइंड ऑफ लिगेंड. एग्जांपल दे देते हैं कोबाल्टिक क्लोराइड का, CO Cl3 NH3 4 थ्राइस. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्या है? 3 हमारे पास क्लोराइड हैं, 3 हमारे पास अमाइन हैं. अलग अलग तरह के हमारे पास लिगेंड्स हैं. दैट इज व्हाई दीज आर हेट्रोलैप्टिक लिगेंड्स. तो सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे that do not contain only one type of ligands. ये हमारा हो गया होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक. तो these are very basics of coordination compound. In the next session
वी विल डिस्कस कि हमारे पास कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं, क्या क्या इनके वेरियस आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेके, वी विल डिस्कस इन ऑल दैट. दिस इज टुडे. थैंक यू.